chalo, let's move on. Set number 7 is on the screen. So once again, I'll get out the screen. Pause the video for about 8 to 10 minutes. Try to solve the question, try to create the solution. If you want to create a table, that's fine. Just try to find the missing values. Take 8 to 10 minutes, pause the video, resume after you are done. Alright, so I hope you have spent enough amount of time with this data and you have understood it completely. You've tried to find what is missing and I hope you have the solution ready. So I will be taking you to the questions now. Question number 1. What is the weight of Andy? Your options are 87, 86, 54, 82. Right? Seems like a simple enough question. अगर आपने पूरा data solve कर लिया है तो you should take about 30 seconds, not more than that. But if you are yet to solve the whole question, then I would advise taking 3-4 minutes and then try to solve it completely and move towards the questions, right? So pause the video for appropriate amount of time. If the table is done, only 30 seconds. Find the answer, mark it, resume when you are done. Alright, so I hope by now you are done. You've marked your answer. Question 1. Now question 2 is on the screen. What is the total weight of all the 5 persons put together? We've got 372 kg, 376 kg, 396 kg and 386 kg. Right? So once again, if your table is done, I would give you about 1 minute because you're supposed to add 5 values. Take a break of 1 minute, pause it for 1 minute, try to solve it, mark your answer and resume the video. Okay, so I assume that you have marked your answer, right? That question was simple enough. You were just supposed to add 5 values, 5 or 6 values, whatever the number is. What is the weight in kg of Hasi? Right? What is the weight of Hasi? And we've got options 87, 86, 67 and 54. Right? So once again, if the table is ready, this seems like a simple enough question. Just identify weight of Hasi. So pause the video for about 30 seconds. Mark your answer, verify it, and then resume after you're done. Alright, so I hope you're done by now. That was question 3. And now question 4 is on the screen. What is the rank of the second lightest person? What is the rank of the second lightest person? Right? The options are 2, 3, 4 or 5. Right? So if the table is ready, take about maximum 1 minute, not more than that. Pause the video and then resume after you're done. Alright, so I hope you are done with all 4 questions now, right? And let us now try to solve this question together. So let me go back to the data. Alright, here we are. So what does the data say? In a wrestling championship, 5 persons, Andy, Bumrah, Clark, David and Hasi. So we've got A, B, C, D, H, right? Secured the first 5 ranks in the same order. Okay, so we have got the order as well. This is the order itself, right? That means we got A, B, C, D and H. A is first, B is 2, C is 3, D is 4 and 5, H is 5. Wrestling match का result है ये, the rank, right? Secured the first 5 ranks in the same order. The weight of each of the 5 persons is a distinct natural number. Distinct natural number है सबका weight. तो यहाँ पर पढ़ के समझ में आ रहा है कि अच्छा मुझे कहीं ना कहीं सब किसी का weight दिया होगा और किसी का weight पता करना होगा, right? Following information is known regarding the weights. Clark is the heaviest person and Bumrah is the second heaviest. Okay, Clark जो है वो heaviest है और Bumrah second heaviest है. Andy is heavier than David. The weight of the lightest person among the 5 is 54 and it is not Hasi. So see, we've got the ranks and then we've got some weight. So weight is missing, right? तो चलिए अभी पता चलिए कि टेबल में क्या करना है. So we've got A, B, C, D, H. Okay. और हमें उनका weight पता करना है. इतना ही डेटा, सिंपल इनफ डेटा. 5 लोग हैं और उनका weight पता करना है. चलिए. Okay. So see, Clark is the heaviest and Bumrah is the second heaviest. तो कहीं ना कहीं इसको लिख देते हैं. Clark जो है वो heaviest है. And Bumrah is the second heaviest. Okay. Clark heaviest, Bumrah is the second heaviest. Okay, what else?
एंडी इज हेवियर देन डेविड, एंडी जो है वो डेविड से हेवियर है, सो एंडी का वेट डेविड के वेट से हेवियर है, एंडी इज हेवियर देन डेविड, सो एंडी कैन नॉट बी द लाइटेस्ट, है ना, एंडी कैन नॉट बी द लाइटेस्ट बिकॉज उसका वेट डेविड से ज्यादा है, सो एंडी के बारे में उसका इतना हो सकता है नॉट लाइटेस्ट। ऑब्वियसली बुमराह एंड क्लार्क भी लाइटेस्ट नहीं होंगे, लाइटेस्ट कौन हो सकता है, डेविड हो सकता है, हसी हो सकता है, डेविड एंड हसी लाइटेस्ट हो सकता है। थर्ड, the weight of the lightest person among the five is 54 and it is not हसी, हसी लाइटेस्ट नहीं है, लाइटेस्ट का वेट 54 है, लाइटेस्ट पर्सन का वेट 54 है और वो हसी नहीं है, सो हम क्या कर सकते हैं भाई, हसी भी नॉट लाइटेस्ट, तो लाइटेस्ट ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, एच नहीं है, कौन बचा से डी, सो डी इज लाइटेस्ट, इसका मतलब डी का वेट है 54 और पहली बार हमें एक डेटा मिला, डी का वेट है 54, लाइटेस्ट, डेविड इज द लाइटेस्ट और डी का वेट है 54। चलिए आगे बढ़ते, द वेट ऑफ द हेवीएस्ट पर्सन इज 87 kg, देखो फिर एक डायरेक्ट डेटा, वेट ऑफ द हेवीएस्ट पर्सन इज 87, हेवीएस्ट कौन था, ये रहा क्लार्क, तो उन्होंने इनडायरेक्टली क्लार्क का ही वेट दिया है, वो है 87 और वो हेवीएस्ट है, सो हेवीएस्ट इज 87 kg क्लार्क, हेवीएस्ट, इसका मतलब रेंज क्या है अपनी रेंज, so we have to go from 54 to 87, 54 से 87 में सारे 5 लोगों के वेट आ जाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ, the weight of the one of the persons is 19 kg more than that of हसी, देखिए weight of one of the person is 19 kg more than that of हसी, हसी से 19 किलो ज्यादा हसी से, ओके इसका मतलब लेट्स से हसी का वेट अगर x है, x kg, सो किसी एक का वेट ए या का बी का या सी या डी का हसी से 19 किलो ज्यादा, 19, तो अगर हसी x है then we have someone which is x plus 19, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हसी 54 वाला नहीं और क्लार्क 87, तो अगेन क्लार्क हो सकता है x plus 19, है ना, क्लार्क हो सकता है x plus 19, ठीक है, अभी फिलहाल इतना पता है कि हसी अगर x है तो समवन x plus 19 है और वो x 54 नहीं है, करेक्ट, x जो है वो 54 नहीं है, ओके व्हाट एल्स, the person whose weight is 82 kg, मतलब the person किसी का वेट 82 kg है, secured a better rank than the person whose weight is 67 kg, okay, दो इंफॉर्मेशन और, the person whose weight is 82, मतलब किसी का वेट 82 है, secured a better rank than the person whose weight is 67, 82 वाले का रैंक 67 वाले के रैंक से ज्यादा अच्छा है। नाउ लेट्स गो बैक टू द डेटा, ये पता चला हमें कि किसी का वेट 82 है और किसी का वेट 67 है, ऑब्वियसली सी का 87 नहीं हो सकता, डी का 54 नहीं हो सकता, ए बी या एच में से ही कोई 82 67 होगा, राइट, ओके, दूसरी चीज ये बोले कि 82 वाले का रैंक, सो 82 वाले का रैंक इज बेटर देन रैंक ऑफ 67, 82 वाले का रैंक इज बेटर देन रैंक ऑफ 67, so obviously 82 इधर नहीं आ सकता, h cannot be 82, x cannot be 82, so x cannot be 54, it cannot be 82 as well, x can be 67, right, okay, so यहाँ पर 82 नहीं आ सकता, ये मैं लिख देता हूँ, this is not 82, और 67 इधर नहीं आ सकता, वो बेस्ट नहीं हो सकता, 67 वाला किसी के नीचे है तो वो बेस्ट नहीं हो सकता, ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट, हमें 4 वेट मिल चुके हैं, 87 54 82 67, 87 54 82 67, इसका मतलब x जो है ना, x क्या क्या हो सकता है, 82 हो सकता है, 67 हो सकता है, 82 हो सकता है, 67 हो सकता है, राइट, 54 भी नहीं हो सकता, व्हाट इफ, चलो x 82 हो सकता है, नहीं x 82 नहीं हो सकता, अगर x 67 है तो क्या होगा, चलो इफ x is 67
अगर x 57 है तो किसी का वेट x plus 19 होगा. What is x plus 19? 67 plus 19 which is 86. अगर x 67 है तो कोई एक 86 होगा. ये पहला पॉसिबिलिटी है ना, ये पहला पॉसिबिलिटी. दूसरा हमारा मिनिमम स्कोर जो है, मिनिमम स्कोर वो 54 है. चलिए अगर मैं मान लूं कि x 67 है तो दूसरा वेट मिलता है 86. अगर उल्टा मान लो x plus 19 67 ले लो, तो यहां पर लिखते हैं if x plus 19 is 67 तो x ऑब्वियसली 54 से कम मिल जाएगा, है ना. x क्या मिलेगा, 67 में से 19 निकाल लो, चलो 20 निकाल दे तो 47, एक ऐड करना तो 48, which is not allowed. So x plus 19 67 नहीं हो सकता. Okay, चलो if x plus 19 is 87 हाईएस्ट नंबर, तो x क्या होगा, so x will be 87 में से 19 गया which is what 68. तो अगर ये 87 है तो ये 68, अगर ये x plus 19 वाला है तो ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 68. इन दैट केस हमारे पास कितने वेट बने, 87, 54, 82, 67 एंड 68. इतने वेट हमारे पास बचे, राइट. ओके, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर x 67 है तो x plus 19 86, सेकेंड हेवीएस्ट पर्सन का 86 होगा, राइट. इन दैट केस 86 जो है वो इसका वेट होगा b का. और दूसरा पॉसिबिलिटी अगर x plus 19 87 है तो x होगा 68, इन दैट केस ये होगा 68. तो 68 यहाँ पर, दूसरे दो वेट बचे हैं अपने पास 82 एंड 67. 67 यहाँ नहीं आ सकता तो इधर 82 आएगा, बट देन 82 फिर सेकेंड हेवीएस्ट हो जाएगा. देखिए ये पॉसिबिलिटी जो है इसको अपन टेबल पे उतारते हैं. मान लीजिए कि x is 68, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 68 स्टार कर, ये है x 68. x plus 19 87 किसी का है, ठीक है, फाइन. एक और वेट बचा है 82 और 67, ये दो बचे और दो जगह बचे. इन दैट केस 82 मुझे यहाँ रखना पड़ेगा बिकॉज इधर 67 नहीं आ सकता, स्टार कर रहा हूँ, और 67 यहाँ आएगा. but then b moved with the second heaviest because second heaviest तो a बन गया. इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है, स्टार वाली चीजें निकाल दीजिए. that means only this possibility is true. x is 67, 67 में 19 ऐड करेंगे तो 86 जो सेकंड हेवीएस्ट वाले का वेट मिलेगा ऑब्वियसली. और एक और वेट बच गया है, कौन सा, 86 आ गया, 87 आ गया, 54 आ गया, 67 आ गया. There is one weight remaining. कौन सा, 82, ये हो जाएगा 82. Yes, so x is 67 which is true and this is the table, right. I won't say बहुत सिंपल था because ये वाला पॉसिबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा. So once again you had two cases and you had to take one case, assume that it is true and then observe कि ये केस बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है. So अब हम चलेंगे क्वेश्चंस के पास. चलिए, what was the weight of Andy? Andy का वेट 82, A का वेट 82, so 82 is the answer. Second question, what is the total weight of all the 5 persons put together? सबका put together weight कितना है वो पता करना है. चलो ऐड कर देते हैं. So we have got, इसको निकाल देता हूँ मैं, yeah. So ये हो जाएगा 8 and then 15 and 11 26, 2 is carry, 10 18 26 31 and 37, 376 is total. So 376 kg is the answer of the second question, that is option B. Right? Question 2 answer is 376 kg. Question 3, what is the weight of Hasi? Hasi का weight कितना है? Hasi's weight is 67. So Hasi's weight is 67. Option C. That was question 3. And question 4. What is the rank of the second lightest person? Okay. Second lightest person कौन है? Second lightest. ये हुआ lightest.
सेकंड लाइटेस्ट होगा एच, एच का रैंक है 5 है ना, ये 5th रैंक है, रैंक वही ऑर्डर में है 1 2 3 4 5, ये आपको याद होगा कि ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ और 5 ये दिया हुआ था है ना. So H का rank is 5 because H is the second lightest. H का rank is 5, so 5 is the answer. Let's just mark it. I would not say that this was a difficult question, but I would definitely say that this was a little bit moderate. Why moderate? Because of those two cases वाला thing. That's it. दो cases में से आपको एक case को पकड़ना पड़ेगा, उसको आपको गलत prove करना पड़ेगा, तो ही आप दूसरे case में जा सकते हो. This is what you are supposed to do when you are across, when you come across two cases which can be true simultaneously, right? So this was a good set, a good practice set. Let's move to the next set, that is arrangement set 8. So once again I will get out of the screen, the data is in front of you. I would like to give you about 8 to 10 minutes, 8 to 10 minutes to solve this one, correct? Understand what is given, identify what is not given, and find out the missing values or the missing values in the table, right? So you've got 8 to 10 minutes, pause the video, try to solve it on your own, and resume only after you are done. Alright, so I hope by now you have tried to understand the data and you've tried to create your own solution table, correct? Let me take you to the questions. Question 1. Which two students from the same standard are adjacent to each other? Which two students from the same standard are adjacent to each other? We got Hari and Balu, Balu and Giri, Giri and Hari, none of the above. So if your table is done, you should take about 1 minute to solve this question and mark your answer. If your table is not done, I would like to give you 3-4 minutes extra just so that you can finish your table. So pause the video for appropriate amount of time, mark your answer, and resume after you are done. Right, so that was question 1. Let's move to question number 2. Which of the following statements is definitely true? Please focus on this word, definitely true. Option A, each second standard student is next to at least one third standard student. Statement B, option B, each third standard student is next to at least one second standard student. Option C, no two students of the same standard are adjacent to each other. Option D, all of the above. Interesting question. Take about 2.5 minutes and then try to identify your answer, mark your answer. So pause the video for about 2.5 minutes and then resume only after you're done. Alright, so I hope by now you have marked your answer, right? That was question 2. Let's go to question number 3. How many students belonging to either first standard or second standard have an odd number of students standing on their left? Right? Please take that. How many students belonging to either first or second standard have an odd number of students standing on their left? Your options are 0, 2, or 4, or none of the above. So once again, I'm going to give you about 2.5 minutes, right? Because you have to see for every option. And then pause the video for 2.5 minutes, mark your answer, and then resume after you are done. Alright, so I hope you have marked your answer by now. That was question 3. Let's move to question number 4. How many students are taller than Hari but are not from the same standard as him? Options are 4, 3, 2, 1. How many students are taller than Hari but are from a different standard, basically? Right? So once again, I want to give you 2 minutes for this one. Right? Yes, if you can solve it under 2 minutes, but wonderful. But for those who might not have created the table, the whole solution, I want to give you 2 more minutes. So pause the video, mark your answer, and then resume after you're done because we are going to solve it together. Alright, so I hope by now you are done with this question. So this is a good set. चलो इसको एक साथ solve करते हैं. Let's try to solve it together. Right. Let's try to understand the data what has been given. Each of 8 students, Akash, Balu, Chakri, Dhiren, Ehsan, Fatima, Giri and Hari. So we've got A, B, C, D, E, F, G, H. Very good. I like it. A, B, C, D, E, F, G, H is from a different height. Is of a different height. So that is also good. All of them are standing in a row facing the same direction from left to right
इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट. देखिए ये इंपॉर्टेंट डेटा, लेफ्ट टू राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स such that the shortest person is at the extreme left and the right extreme पे कौन आएगा? The tallest person, right? Naturally, 3 of them are from first standard, 3 from second standard and 2 from third standard. देखिए ये भी एक important data है कि भाई first standard से कितने हैं? 3, second standard से कितने हैं? 3, third standard से कितने हैं? 2. Okay, and then we got some clues, some information. Okay, so let's try to create the solution, right? So we've got 8 people, different heights. Shortest is on the left, tallest is on the right. Okay, so that gives me an idea that we can create something like this. Let's say these are 8 places. 5, 6, 7, and 8. Right? We know that यहाँ पर कौन आएगा? Shortest. यहाँ पर कौन आएगा? Tallest. Okay. We also have one set of information. कौन से standard से belong करते हैं? So let's try to have a table. Let's say this is the table. Okay, this is the table. And this is the standard, right? So ये दो tables और ये एक solution, ये हमें fill up करना है. This is what we are supposed to fill up by reading the data. So let's start. Akash, the second tallest, is not from first standard. देखो आकाश जो है वो second tallest है, is not from first standard. तो ये दो जगह पर भर जाएगा. Second tallest तो कहाँ पर आएगा? Second tallest मतलब यहाँ पर. This is Akash. And Akash is not from first standard, so Akash में 1 cancel. आकाश में first, अगर first standard में नहीं है तो पक्का वो second या third standard में होगा. So आकाश first standard में नहीं है, ये पता चला अभी हमें. आकाश second tallest है, ठीक है. Okay, what else? Balu, who is the 4th tallest, is from second standard. बालू जो है वो 4th tallest है और वो second standard से है. 4th tallest मतलब 1, 2, 3, 4. बालू आ गया यहाँ पे. एंड बालू इज फ्रॉम सेकंड स्टैंडर्ड, ये दे ही दिया है तो बालू जो मैंने सेकंड लिख रहा हूँ, बालू इज फ्रॉम सेकंड स्टैंडर्ड. जो डेटा हम डायरेक्टली टेबल में डाल सकते हैं वो हम डाल ही देंगे सो दैट हम ज्यादा चीजें डिड्यूस कर सकें. तो अभी तक पता चला है कि आकाश सेकंड टॉलेस्ट, बालू 4th टॉलेस्ट. ओके, एहसान इज फ्रॉम सेकंड स्टैंडर्ड, एहसान इज फ्रॉम सेकंड स्टैंडर्ड. चक्री इज नॉट फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड. देखिए एहसान सेकंड में है और चक्री थर्ड में नहीं है, तो डाल देते हैं. एहसान सेकंड स्टैंडर्ड में है बट चक्री थर्ड में नहीं है, तो उसमें थर्ड कैंसिल. ओके, जो कैंसिल हो रहा है मैं वो थोड़ा सा राइट साइड में लिख रहा हूँ सो दैट यहाँ पर एक जगह बच जाए लिखने के लिए, है ना. सो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना होगा. यू आर सपोज्ड टू ऑब्जर्व द स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल्स दैट व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, राइट. व्हाट इज द रीजन. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हमने यूज कर लिया, ये हमने यूज कर लिया. हरी इज टॉलर देन गिरी, सो हरी टॉलर देन गिरी बट शॉर्टर देन बालू. हरी शॉर्टर देन बालू मतलब बालू यहाँ आएगा. सो ये एक ऑर्डर मिल गया हमें कि बालू लंबा है हरी से, हरी लंबा है गिरी से. सो बी एच जी, इसको लिख देते हैं कहीं पे बी एच जी. सो बी एच जी मतलब बालू इन दोनों से लंबा है. तो बालू जो है वो बालू के इस तरफ ही आएंगे दोनों. मतलब क्या होगा कि भाई हरिगिरी यहाँ कैंसिल, हरिगिरी यहाँ भी कैंसिल, क्योंकि बालू दोनों से लंबा है तो ये लोग इधर ही आ सकते हैं. सिमिलरली गिरी सबसे छोटा है इन तीनों में, गिरी सबसे छोटा है इन तीनों में. मतलब बालू उसके बाद कहीं पे हरी और उसके बाद कहीं पे गिरी, तो यहाँ सीधा गिरी नहीं आ सकता, यहाँ सीधा गिरी नहीं आ सकता. सिमिलरली हरी सबसे छोटा नहीं हो सकता बिकॉज हरी गिरी से तो लंबा है, तो यहाँ पर हरी नहीं आ सकता. देखिए एक ही स्टेटमेंट से हम बहुत सारी चीजों को
इन्फर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, राइट। एकदम शांति से एकदम आराम से आगे बढ़ना है, कोई हरी नहीं करनी है, राइट। आराम से सारी चीजों को सोचते हुए आपको टेबल में या फिर सोल्यूशन में डेटा भरना है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू शुड बी एट द मोस्ट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। हालांकि कैट में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपके आसपास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फील होगा, बट देन योर माइंड शुड बी फोकस्ड, राइट। हरी कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट, बालू के एकदम लेफ्ट साइड में गिरी नहीं आ सकता, बिकॉज बीच में कहीं पे हरी को आना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कैन से टिल नाउ। आगे बढ़ते हैं। हरी इज टॉलर देन गिरी बट शॉर्टर देन बालू, व्हाइल धीरेन इज शॉर्टर देन आकाश। धीरेन जो है शॉर्टर देन आकाश है, आकाश से छोटा है धीरेन। इसका मतलब क्या हुआ कि आकाश की इस तरफ आना चाहिए, तो ऑब्वियसली धीरेन भी यहाँ नहीं आ सकता, धीरेन यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ से भी, ठीक है। धीरेन यहाँ नहीं आ सकता, तो आकाश धीरेन से लंबा, ठीक है। आगे, चक्री इज शॉर्टर देन गिरी, देखिए मैं फिर से लिखूँ यहाँ पे, तो चक्री गिरी से शॉर्टर है, गिरी से छोटा, मतलब गिरी इधर लिख दिया तो कैसा रहेगा, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो गिरी चक्री से लंबी है। चक्री इज शॉर्टर देन गिरी बट टॉलर देन फातिमा, चक्री इज टॉलर देन फातिमा, इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसे लिखा। तो ये देखिए बहुत अच्छा एक ऑर्डर मिल गया हमें कि बालू, हरी, गिरी, चक्री, फातिमा। बालू लंबा है हरी से, हरी लंबा है गिरी से, गिरी लंबी है चक्री से, चक्री लंबी है फातिमा से। तो BHGCF ये हम सीधा लिख सकते हैं, BHGCF। ये पूरा का पूरा हम लोग टेबल में डाल सकते हैं। कैसे? देखिए बालू के लेफ्ट साइड, बालू से छोटे 4 लोग हैं और वो ऑर्डर मिल गया हमें, ये रहा, ब्यूटीफुल। तो बालू के नेक्स्ट तुरंत आएगा हरी, हरी से नेक्स्ट गिरी, गिरी से नेक्स्ट चक्री, चक्री से नेक्स्ट फातिमा। देखिए फातिमा, चक्री, गिरी, हरी, बालू, बचे हैं धीरेन और एहसान। धीरेन यहां नहीं आ सकते, तो इधर ऑब्वियसली कौन आएगा, एहसान, और धीरेन आएगा यहाँ। तो अब हमें पता चल गया कि शॉर्टेस्ट इज फातिमा, देन चक्री, देन गिरी, देन हरी, देन बालू, देन धीरेन, देन आकाश, देन एहसान। इतना अभी तक हमें एकदम क्लियर हो चुका है। सो वी हैव गॉट द ऑर्डर ऑफ द हाइट। इसका मतलब दो से तीन क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। मान लो आगे वाला पार्ट आपसे सॉल्व नहीं होता है एग्जाम में, तो ये तो सॉल्व हो गया, तो इसके तो आंसर कर ही सकते हैं हम लोग। चलिए अब हमें ये सेट करना है। ओके, डेटा में चलते हैं। नीदर द शॉर्टेस्ट नॉर द सेकंड शॉर्टेस्ट इज फ्रॉम फर्स्ट एंगल। सबसे छोटा और सेकंड वाला सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट एंड सेकंड शॉर्टेस्ट, दोनों ही फर्स्ट से नहीं है, दोनों ही फर्स्ट से नहीं है, नीदर नॉर यूज किया। सेकंड शॉर्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फर्स्ट से नहीं है। चलिए, शॉर्टेस्ट एंड सेकंड शॉर्टेस्ट मतलब फातिमा एंड चक्री, ये दोनों ही फर्स्ट से नहीं, तो पहले तो कैंसिल करोगे, तो फातिमा में फर्स्ट कैंसिल, चक्री में फर्स्ट कैंसिल। चलो चक्री को देखो, चक्री में थर्ड नहीं आ सकता, फर्स्ट नहीं आ सकता, पक्का सेकंड ही आएगा, पक्का सेकंड ही आएगा, है ना। सो BCE ये तीनों ही सेकंड स्टैंडर्ड से है। इसका मतलब अब कहीं पे सेकंड स्टैंडर्ड नहीं आ सकता। तो देखो यहाँ सेकंड नहीं आ सकता, 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 यहाँ सेकंड नहीं आ सकता। लुक एट आकाश, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं, तो पता क्या होगा, थर्ड। लुक एट फातिमा, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं, तो पता क्या होगा, थर्ड। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, थर्ड स्टैंडर्ड के दो ही बच्चे हैं, चेक कर लो, देखो ये थर्ड स्टैंडर्ड के दो ही बच्चे हैं, तो सेकंड भी डन, थर्ड भी डन, तो बच्चे बाकी जो बच्चे होंगे सारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के हैं। इसका मतलब BGH सारे के सारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के, BGH सारे के सारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के। अगर मैं सबके नाम के सामने स्टैंडर्ड लिख दूं, चलो फातिमा है थर्ड स्टैंडर्ड, चक्री है सेकंड स्टैंडर्ड, गिरी है
फर्स्ट स्टैंडर्ड, हरी है फर्स्ट स्टैंडर्ड, बालू सेकंड स्टैंडर्ड, धीरेन फर्स्ट स्टैंडर्ड, आकाश थर्ड स्टैंडर्ड एंड एहसान ई सेकंड स्टैंडर्ड। ओके, तो ये हमने सारे स्टैंडर्ड लिख दिए, ऑर्डर लिख दिया, एंड वी आर डन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वी विल गो टू सॉल्विंग दिस सेट, वी विल गो टू द क्वेश्चंस। चलिए, which two students from the same standard are adjacent to each other? सेम स्टैंडर्ड से लोग साथ में कौन से दिख रहे हैं आपको? देखिए, फातिमा चक्री में, चक्री गिरी में, गिरी हरी दोनों ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में, गिरी हरी। तो गिरी हरी अगर ऑप्शन में है तो वो हमारा आंसर है गिरी एंड हरी। लेट अस गो टू द क्वेश्चन। गिरी एंड हरी, सी ऑप्शन दिख रहा है, यस दैट इज करेक्ट। गिरी एंड हरी दोनों ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से है और दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे है ना। दैट वाज क्वेश्चन 1, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2, which of the following statements is definitely true? Which of the following statements is definitely true? Okay, पहला स्टेटमेंट पकड़ते हैं। Each second standard student is next to at least one third standard student। मतलब हर सेकंड वाले बच्चे के आसपास, नेक्स्ट टू मतलब आसपास, एटलीस्ट एक थर्ड स्टैंडर्ड वाला बच्चा है। चलो चेक कर लेते हैं। चलो हर एक सेकंड वाले को देखो, इस सेकंड के आसपास थर्ड में है, हाँ है। ये सेकंड के आसपास थर्ड है ना, इसका मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन ए गलत, डेफिनेटली ट्रू तो नहीं। स्टेटमेंट बी पकड़ते हैं। ईच थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज नेक्स्ट टू एटलीस्ट वन सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। उल्टा, हर एक थर्ड वाला बच्चा नेक्स्ट टू एटलीस्ट वन सेकंड वाला बच्चा। अगर ए स्टेटमेंट गलत है तो ये भी गलत ही होगा ना। हर थर्ड वाले के बाजू में ये बोल रहे हैं सेकंड वाला बच्चा होगा, क्योंकि अगर ये सही होता तो ये भी सही होता। तो चलो चेक कर लेते हैं बी, क्योंकि सेकंड स्टैंडर्ड वाले 3 बच्चे हैं तो ये इसका कंप्लीट ऑपोजिट नहीं है। चलो बी वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं। थर्ड के आजू बाजू सेकंड वाला होना चाहिए, चेक करो। थर्ड के बाजू में सेकंड है, हाँ है, और थर्ड के बाजू में सेकंड है, हाँ है, यस। सो थर्ड का हर एक बच्चा एटलीस्ट एक सेकंड वाले के नेक्स्ट में है। So yes, that is true. That means आंसर आएगा स्टेटमेंट बी। This is the answer. आपको अगर थर्ड स्टेटमेंट को गलत साबित करना है तो क्या बोल रहा है वो? No two students of the same standard are adjacent। ये तो गलत है, बिकॉज अभी अभी हमने ये मार्क किया था, इसका मतलब ये गलत है, और ऑब्वियसली ये गलत है तो ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। तो अपना आंसर आएगा स्टेटमेंट बी। फिर से एक बार, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर नॉट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। अगर ए गलत है तो बी भी गलत है, ऐसा नहीं है ना। व्हाई? बिकॉज सेकंड स्टैंडर्ड के 3 बच्चे हैं और थर्ड स्टैंडर्ड के 2 ही बच्चे हैं, दैट्स व्हाई। चलो दैट वाज क्वेश्चन 2, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ईदर फर्स्ट और सेकंड हैव एन ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग ऑन देयर लेफ्ट? ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग ऑन देयर लेफ्ट। ओके, चलो फर्स्ट और सेकंड में दोनों को गिनना है, फर्स्ट और सेकंड में से, फर्स्ट में हो या सेकंड में। हैव एन ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग टू द लेफ्ट। ओके, इंटरेस्टिंग। तो सेकंड स्टैंडर्ड वाला देखो, ये चक्री देखो, पहले चक्री के लिए चेक किया, क्या उसके लेफ्ट में ऑड नंबर है? चक्री के लेफ्ट में हाँ, सो वी हैव 1। उसके बाद गिरी, उसके लेफ्ट में 2 लोग। उसके बाद हरी, उसके लेफ्ट में 3 लोग। उसके बाद बालू, वो भी सेकंड स्टैंडर्ड से, उसके लेफ्ट में 4 लोग। उसके बाद धीरेन, उसके लेफ्ट में 1 2 3 4 5 5 लोग। उसके बाद आकाश तो थर्ड में है, एहसान के बाजू में 7 लोग। ऑड कहाँ कहाँ पर है? देखो 1 इज ऑड, 3 इज ऑड, 5 इज ऑड, 7 इज ऑड। तो चक्री, हरी, धीरेन एंड एहसान, 4 लोगों के लेफ्ट में ऑड नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, 4। तो हमारा आंसर आना चाहिए 4। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, राइट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड दोनों बोला था, है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों बोला था। चलिए, दैट वाज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉलर देन हरी बट आर नॉट फ्रॉम द सेम स्टैंडर्ड एज हिम? हरी से लंबे हैं, मतलब हरी की राइट साइड है, बट हरी के सेम स्टैंडर्ड के नहीं। हरी से लंबे
मतलब हरी की राइट साइड में, जैसे यहाँ पर हरी है तो वो लोग इधर होने चाहिए, इधर नहीं, और सेम स्टैंडर्ड से नहीं होने चाहिए, आर नॉट फ्रॉम द सेम स्टैंडर्ड। ओके, चलो डेटा पे चलते हैं। हरी की राइट साइड पे और हरी फर्स्ट में, तो बालू भी आएगा, यस, धीरे नहीं आएगा, आकाश भी आएगा और एहसान भी आएगा। 1 2 3 तीन लोग ऐसे हैं जो हरी से लंबे हैं और हरी के स्टैंडर्ड से अलग स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। 3, so answer is 3. Again, that was a good question. Option B is the right answer. Right? काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट? दिस क्वेश्चन मस्ट हैव प्रोवाइडेड यू विद अ गुड प्रैक्टिस